Assalamu alaikum everyone. I hope that you all are fine. Welcome to our YouTube channel Introduction to Special Education. I am Abiha and I am going to talk about some learning disability. So first of all, we have to know that what are learning disabilities. Learning disabilities are due to genetic or neurobiological factors. ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हमारी जीन्स में प्रॉब्लम की वजह से होती है या फिर ये न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होती है. That alternate brain functioning in a manner which affect one or more cognitive processes related to learning. ये हमारे इस तरह से इफेक्ट करती है कि ये हमारे ब्रेन को इस तरह से अल्टरनेट करती है कि हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को इफेक्ट करती है जो कि हमारी लर्निंग से रिलेटेड होते हैं. These processing problems can interfere with learning basic skills such as reading, writing and math. Now we discuss about the types of learning disabilities. There are many different kinds of learning disabilities like dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia. Dyspraxia is a sensory integration disorder in which there is a difficulty with fine motor skills, which create a problem with the coordination of hand with eyes, or it can create problem with the balancing of the body. And next one is visual processing disorder, non-verbal learning disability, oral and written language disorder, and many more. Now we have to discuss about auditory processing disorder. What is auditory processing disorder? Auditory processing disorder is a neurological condition. एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है. ये न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम की वजह से होती है. दैट इम्पैक्ट इन अ वे दैट द ब्रेन इज एबल टू प्रोसेस व्हाट इज हेयर्ड. ये हमारे ब्रेन को इस तरह से इम्पैक्ट करती है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो अनेबल हो जाता है कि क्या सुना है वो एक बंदे ने. समवेयर बिटवीन द साउंड्स दैट आर हेयर्ड एंड हाउ द ब्रेन रिमेंबर्स और अंडरस्टैंड दोज साउंड्स. ये इस तरह से साउंड्स को इफ़ेक्ट करती है कि जो साउंड्स हमने सुनी होती है ना वो याद नहीं रख पाते या फिर उनको समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या सुना गया है. द इंफॉर्मेशन इज इवन जम्बल्ड और लॉस्ट. इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन तक पहुंची होती है, जो हमने आवाज़ें सुनी होती हैं, वो मिक्सअप हो जाती है या फिर वो लॉस्ट हो जाती है. अब हम डिस्कस करेंगे ये कि किस एज के बच्चों में होती है. ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज अ hearing problem that affect about 3 to 5% of school age children. CAPD. What is CAPD? Kids with this condition also known as Central Auditory Processing Disorder, CAPD. In this disorder, they cannot understand what they hear in the same way other kids do. इस प्रॉब्लम के जो शिकार लोग होते हैं वो नहीं समझ नॉर्मल लोगों की तरह नहीं समझ पाते. जिस तरह से नॉर्मल बच्चे सुनते हैं कोई भी आवाज़, उस तरह से ये बच्चे जो है ना वो नहीं सुन पाते. दिस इज़ बिकॉज द ears एंड ब्रेन डू नॉट फुली कोऑर्डिनेट. ये इसलिए होती हैं क्योंकि इसमें हमारा ब्रेन और ईयर्स जो है ना वो फुली कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होते. Auditory processing difficulties. There are many difficulties of auditory processing disorder. ADP can affect the way your child speak as well as their ability to read, write and spell. They may drop the end of a word or mix up similar sounds. ये बच्चों को इस तरह से इफ़ेक्ट करती है कि उनकी जो लिखने की, पढ़ने की, बोलने की जो सलाहियत होती है उनको मुतासिर करती है. और इसमें बच्चे जो है ना वो लफ्ज़ के जो एंड वाला पार्ट होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं या फिर ये सिमिलर साउंड्स जो होते हैं ना उनको मिक्सअप कर देते हैं. इसके सिम्पटम्स भी हैं कुछ. योर चाइल्ड आल्सो मे फाइंड इट हार्ड टू फॉलो कन्वर्सेशन. वो कन्वर्सेशन जो लोगों के दरमियान में हो रही होती है उनको वो फॉलो नहीं कर पाता. He may find hard to know where a sound comes from, and he listen to music. He may find hard to remember spoken instructions, particularly if there are multiple steps. वो इसमें जो बच्चा है ना वो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो कि स्टेप्स की फॉर्म में हो, जैसे किसी चीज़ के रूल्स वगैरह हों या कोई चीज़ लेंथी हो, तो वो इस तरह की चीज़ों को नहीं याद रख पाते. They cannot understand what people say, especially in loud places or if more than one person is talking. वो ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा शोर हो वहाँ पे वो आवाज़ों को नहीं समझ पाते या फिर जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग बात करें. अब हम बात करेंगे इसके काजेज़ के बारे में. डॉक्टर्स डू नॉट नो exactly what causes APD, but it may be linked to illness. APD can happen after chronic ear infection. ये कान के इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है. मेनिंगेट्स को हम उर्दू में
गर्दन और बुखार भी कहते हैं। और लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग ये सीने का जहर होता है जो कि मुंह में पेंसिल वगैरह डालने से एक बंदे को लाक हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से भी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है। Some people who have nervous system disease such as multiple sclerosis also develop auditory processing disorder. स्क्लेरोसिस ये होता है कि ये एक ख़तरनाक बीमारी है जिसमें दिमाग की और रीढ़ की हड्डी जो है ना वो उसके हिस्से सख्त हो जाते हैं और वो एक रसौली बन जाते हैं जिससे असाबी कमज़ोरियाँ या फिर दूसरी इस किस्म की कमज़ोरियाँ होती हैं। और ये इसलिए भी डिसऑर्डर हो सकता है क्योंकि बच्चे की प्रीमेच्योर बर्थ हुई हो या फिर उसका लो वेट हो तो फिर भी ये प्रॉब्लम होती है। हेड इंजरी की वजह से हो सकता है, जीन्स की वजह से हो जाता है। एडिपिमेरानियन फैमिलीज़ ये जीन जो वो ट्रांसफ़र होती है। इसके कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं। देयर आर नो क्योर फॉर एपीडी एंड द ट्रीटमेंट इज़ स्पेसिफिक टू ईच पर्सन बट इट यूजुअली फोकसेस ऑन द फॉलोइंग एरियाज: classroom support, making other skills stronger, therapy. Classroom support, electronic devices like an FM frequency modulation system can help your child hear the teacher more clearly. ये अगर हम इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको क्लास में इस तरह का माहौल दिया जाए कि उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोवाइड की जाएँ ताकि वो टीचर की आवाज़ को क्लियरली सुन सके तो फिर भी हम इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड देयर टीचर्स कैन सजेस्ट वे टू हेल्प देम फोकस देयर अटेंशन। और टीचर्स को इस तरह के तरीके जो है ना वो सजेस्ट करने चाहिए कि वो उन बच्चों की अटेंशन को फोकस रख सकें ये उस चीज़ पे जो वो उनको बता रही हैं। लाइक सिटिंग टूवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड लिमिटिंग बैकग्राउंड साउंड्स, जैसे कि उन्हें क्लास में फर्स्ट वाली रोज़ पे बिठाना चाहिए और जो जब पढ़ा रही हो उनको कुछ भी बता रही हो तो जो बैकग्राउंड की साउंड्स हैं ना उनको लिमिटेड रखना चाहिए ताकि वो बच्चे डिस्टर्ब ना हो। मेकिंग अदर स्किल्स स्ट्रॉन्गर, things like memory, problem solving and other learning skills can help your child deal with APD. इस तरह के जो बच्चे हैं ना उनकी दूसरी जो स्किल्स वगैरह होती है ना उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड अदर स्किल्स। द लास्ट वन इज़ थेरेपी। स्पीच थेरेपी कैन हेल्प योर चाइल्ड रिकग्नाइज साउंड एंड इम्प्रूव कन्वर्सेशनल स्किल्स। स्पीच थेरेपी जो है ना वो बच्चे को साउंड्स को पहचानने में मदद करती है और उनकी कन्वर्सेशन स्किल्स जो है ना उनको इम्प्रूव करती है। एंड रीडिंग सपोर्ट दैट फोकस ऑन स्पेसिफिक एरियाज वेयर